class 10. Today we'll start with the new chapter acids, bases and salt, and we will learn something about acid over here. So I'm just telling you about acids, that acids are those compounds when they are dissolved in the water, then they give hydronium ion, right? So hydronium ion is given by them, and if you see that these hydronium ions are this thing H3O plus, they are positively charged ions, right? So they are positively charged ions. This thing you should know about acids. Now we are focusing on one example. For example, I take HCl. When it's aqueous solution, we have already seen the acids dissolved in the water, they give hydronium ions. So I am taking this thing, and when it is dissolved in water, it gives you the respective ions from which it is formed, H plus and Cl. So these two ions are being formed, right? So this particular H ion which has been obtained from this HCl, it combined with the water, because HCl is been dissolved in water. The water you will get from the solution of HCl, it will dissolve with it will combine with H plus ion, and it will give you the hydronium ion. Okay, this way you can form the hydronium ion. You will see that all the acids will definitely give you hydronium ion in water, right? You can use other example also. You can, I am giving you in this form. You can also see this in this form, like HCl when dissolved in water, directly we are writing, then it will give you the hydronium ion, right? This thing and H from here, hydronium ion and Cl ion is being left. So this is the case of an acid. Now we can see about the bases also. हम bases को भी देख लेते हैं कि bases क्या होते हैं. Bases are the compounds which reacts with these hydronium ion. ठीक है ना. Bases वो compound होंगे जो hydronium ion से क्या कर जाए, जो hydronium ion कहाँ से मिला हमें, we get it from the acid. तो bases will reacts with the hydronium ions of the acid and they give you, यानी base क्या करेगा, आपका ये hydronium ion है उसके साथ react कर जाएगा, तो ये आपको क्या दे देगा, it gives you salt and water. Now let's see on one base. जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है, वो एक बेस है जो कि किसी भी, सपोज़ करो, ये तो हमने मालूम है ना हाइड्रोनियम आयन किसी एसिड से मिला. तो सपोज़ करो हमने देखा कि इसने हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करा, कोई भी एसिड हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, सपोज़ करो HCl. अब ये सॉल्ट बनाएगा. मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे आपको चार्जेस का ध्यान होना चाहिए. ये -2 है तो ये +2 है, ये +1 है, दिस इज़ -1. अब आपको मालूम है ना पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ कंबाइन करेगा. नाउ दिस Cu विल कंबाइन विद Cl. तो Cu विल कंबाइन विद Cl. आई एम नॉट जस्ट नाउ, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट, आई एम ओनली राइटिंग द सिम्बल्स. और ये जो H है, ये H और O क्या होता है आपका, वाटर, क्योंकि आपको आउटकम मालूम है, एक सॉल्ट बनेगा और वन इज़ योर वाटर. नाउ लेट्स फोकस ऑन यूज दिस थिंग CuCl. ये हमारा करेक्ट है कि नहीं है फॉर्मूला. तो हम ये देख रहे हैं CuCl, इसकी वैलेंसी 2, right, and this valency is how much, it's 1. Cross multiply it, you will get it CuCl2. तो you can put it 2 over here. तो यहाँ पे आपका CuCl2 आपका ये सॉल्ट बन गया है, जो कि क्या है, कॉपर टू क्लोराइड, राइट. अब नाउ वी कैन बैलेंस इट अप. यहाँ हाइड्रोजन में भी 2 है, Cl में भी 2 है, तो पुट 2 ओवर हियर. सो यू विल गेट दिस थिंग. तो आपको समझ में आया, बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विद द हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना है ना एसिड्स की वजह से. सो इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोनियम आयन, गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. दीज आर बेसिस. अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, बेस में, बेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिस में आपको कुछ बात ध्यान रखनी है. एक होता है आपका ऑक्साइड्स बेसिस में, या फिर कोई हाइड्रोक्साइड, इन सबको बेसिस में रखा जाता है, ठीक है. एनीथिंग मीन्स, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड हमने लिखा है, इट कम्स इन ऑक्साइड. अब यही इसका हाइड्रोक्साइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा. यानी अगर हम K2O ले लें तो ऑक्साइड है, या फिर हम ले लें KOH ले लें तो क्या है, हाइड्रोक्साइड है. ऑक्साइड में ऑक्सीजन यू विल सी, एंड हाइड्रोक्साइड में OH यू विल सी. सो दिस इज़ द केस ऑफ योर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड. नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किसके होंगे, ये क्या दिख रहा है आगे, दिस इज़ वॉट, मेटल्स. सो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. इट्स ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स. ये आपको ये फोकस रख के चलना है. अब कुछ और बातें होती हैं. देयर आर सर्टेन, दिस थिंग इज़ बीन देयर about your insoluble bases also, and which are not alkalis. Now एक पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा बेसिस के बारे में, that bases are
are soluble also and insoluble also. These two things must be coming in your previous class 8 also. So let's focus on this thing. अब हमारे पास पॉइंट आता है कौन soluble है बेस और कौन insoluble है. अब soluble insoluble मतलब मीन्स क्या, the bases are soluble in water or insoluble in water. Right, ये आपको ध्यान. So these things. Now the bases which are soluble in water, they are known as alkalis. ठीक है, and insoluble in water they are bases. इसीलिए एक लाइन होती, कहा जाता है कि all alkalis are bases but all bases are not alkalis. This much you have learn in class 8. जितने भी bases होते हैं वो सब alkalis हो सकते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन सब एल्किलीज बेसिस हो जाएं ये ज़रूरी नहीं. क्यों? क्योंकि बेसिस की दो कैटेगरी हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है बेस कुछ बेसिस, और कुछ बेसिस वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, अब नाउ लेट्स वी गॉट दिस टर्म एल्किली. वी विल फोकस ऑन द एल्किली पार्ट ऑल्सो. सो आई एम फोकसिंग ऑन द एल्किली पार्ट. Now what does it means? What is alkali? So alkalis are the compounds when they dissolve in the water they gives you hydroxyl ion. So you can see the definitions. राइट, these are the compound which will give you OH ions आपको देंगे. OH ions में माइनस चार्ज लगा है इसीलिए नेगेटिव चार्ज आयंस. अब देखो कैसे, NaOH हमने एक लिया, ठीक है, यू हैव टू डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज डेफिनेशन सेज दैट. तो ये आपको क्या दे देगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लगाइए, Na आयंस प्लस OH आयन. तो इसने आपको क्या दे दिया है, एक नेगेटिव चार्ज आयन दिया है जो कि क्या है आपका हाइड्रोक्साइल आयन. इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ एन एल्किलीज. अब ये जो नेगेटिव OH आयन्स हैं ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, व्हाट द नेम आई हैव रिटन, हाइड्रोक्साइल आयन. हाइड्रोक्साइल आयन बोल लो, हाइड्रोक्साइल बोल लो, हाइड्रोक्साइड आयन बोल लो, कुछ भी बोलो, ऑल आर सेम. हाइड्रोक्साइल आयन मैंने लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, बोथ आर द सेम टर्म्स, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हाइड्रोक्साइल आयन मैम लिख रही है, हाइड्रोक्साइड आयन लिख रही है, बोथ आर सेम. ठीक है, सो यू हैव टू सी दैट कि एल्कलीज आर, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सब बेस हैं बिकॉज वो वाटर सॉल्युबल है. लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं है. क्यों? क्योंकि बेसिस में वाटर सॉल्युबल भी हैं और वाटर इनसॉल्युबल भी हैं. राइट, सो लेट फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. कुछ और चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें. हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बेस का देखेंगे एल्कलीज का, जिससे यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर. लेट्स फोकस ऑन दिस स्ट्रॉन्ग एल्कलीज. हम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज किस किस को रख सकते हैं, वी कैन पुट NaOH ओवर हियर, we can put KOH on it. Now why we are saying that it is a strong alkalis, actually lithium hydroxide भी जो होता है उसको भी आप है ना strong alkalis में रखते हैं. possibility इनको strong alkalis में इसीलिए रखा गया है because when they are dissolved in the water they give you ions and they are completely you can say dissociated. ठीक है, यानी हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं NaOH से. जैसे NaOH है, ठीक है, आपने उसको एक्वस कंडीशन में AQ लिख दीजिएगा, उससे अंडरस्टूड होता है कि पानी में आपने डिज़ोल्व करा रखा है. सो आपने एक्वस कंडीशन में से डिज़ोल्व करा है तो ये आपको रिस्पेक्टिव Na आयंस प्लस OH आयंस आपको दे देता है. ठीक है, अब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग एल्कली क्यों कहा, पहली चीज़ इसने जो अपना जो ये आपने जो कंपाउंड लिया रखा है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा पानी में. ठीक है, और आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस मिलेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यू विल गेट वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बिकॉज यू विल गेट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस यू विल गेट. ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एल्कली में आ रहा है. यही चीज़ आप यू कैन पुट फॉर KOH ऑल्सो. सो K प्लस वाटर लिख दीजिए साइन, K प्लस प्लस OH आयंस. तो यहाँ पर भी आपको जो OH आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा, मेरा मतलब ये है, इस फॉर एग्जांपल इसको वो लेके मत चलिएगा लेकिन फिर भी आप इसको समझिए. जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH लिए. अब 100 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सारे के सारे है ना ये ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, 100 के 100, तो यानी अगर 100 मॉलिक्यूल्स ये हैं तो ये आयंस दे रहे हैं. 100 K प्लस आयंस मिलेंगे आपको, 100 OH माइनस आयंस मिलेंगे. यानी जो आपका सोल्यूशन होगा भाई, आप ये NaOH का आप सोल्यूशन ही तो बना रहे हो भाई. NaOH और वाटर को मिला के आपने सोल्यूशन बनाया रखा है NaOH का. तो इसके अंदर जो है आपको 100% NaOH आयंस, NaOH जो है वो ब्रेक होके Na प्लस आयंस और OH आयंस आपको मिलेंगे. तो आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस का होगा. इसीलिए कहा गया, वी सेड दैट दीज टू पर्टिकुलर बेसिस आर कमिंग इन द स्ट्रॉन्ग एल्कलीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स कम ऑन द अदर पार्ट. नाउ नेक्स्ट कम्स योर वीक एल्कली. हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है NH4OH.
और आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को भी लिख सकते हो, ठीक है। बोथ आर कमिंग इन दिस पार्ट। नाउ प्लीज़ रिमेंबर इट, वाई दे आर कमिंग इन अ वीक एल्कली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, सपोज करो आपने NH4OH को लिया और आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व करा, ठीक है, यू आर डिज़ोल्विंग इन वाटर। सो व्हेन यू आर डिज़ोल्विंग दिस NH4OH इन वाटर, इट विल गिव यू NH4 आयंस प्लस OH आयंस, राइट। ये आपको देगा NH4 आयंस और OH आयंस, ये आपके पास आएंगे आयंस। सो यू हैव टू कीप इट माइंड कि ये जो आपका जो सोल्यूशन है आप किस में बना रहे हैं। आपने एक कंटेनर लिया, आपने उसमें वाटर डाला, आपने उसमें NH4OH डाला, ठीक है, आपने ये सोल्यूशन इसका बना लिया। अभी तक आपने पीछे देखा था कंटेनर, तो उसमें आपको आयंस मिले थे Na प्लस आयंस, OH आयंस। यहाँ पर भी इस कंटेनर में आपको Na प्लस आयंस और OH आयंस सॉरी NH4 प्लस आयंस, राइट, यू विल गेट NH4 प्लस आयंस एंड OH आयंस, यू विल गेट दीज आयंस, ठीक है। देखो वाटर है, वाटर के भी आपको H प्लस आयंस और OH आयंस मिलेंगे, इधर भी आपको वाटर का H प्लस आयंस OH आयंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो आपका बेस है, ये जो कि एल्कली है, वीक एल्कली, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, ये पार्शली डिसोसिएटेड होता है, ठीक है। व्हेन यू आर डिसॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एल्कली इन वाटर, इट इज़ पार्शली डिसोसिएटेड एंड इट गिव्स यू वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस। तो ये क्या है आपका, क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस यू गेट हियर इन वीक 1, ठीक है। मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो 100 मॉलिक्यूल्स नहीं ब्रेक होंगे, हो सकता है 100 मॉलिक्यूल्स में 60% ही ब्रेक हो, 40% ऐसे ही रह जाए, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या है, NH4OH का कंपाउंड है, लेकिन ये बेसिकली इसमें ढेर सारे NH4OH होंगे ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो NH4OH के मॉलिक्यूल्स हैं वो 100% नहीं टूटेंगे। अब सपोज़ करो आपने 100 लिया रखा है, तो हो सकता है 60% ही इसमें ब्रेक हो रहा है, तो आपके पास 60 NH4 प्लस आयंस मिलेंगे एंड 60 OH माइनस आयंस मिलेंगे, तो 40 क्या मिले, 40 आपको NH4OH मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, राइट। इसका मतलब जो सोल्यूशन है वीक एल्कली का, उसमें आपको क्या मिलेगा, इट विल कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा और यू विल गेट द आयंस ऑल्सो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी मॉलिक्यूल्स और आयंस के केस में, ठीक है। ये ध्यान दे के चलना है, ठीक है। अभी मैंने बताया, अब जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, अगर मैम पूछें आपसे कि व्हाट यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ NH4OH आयन इफ इट इज़ अ वीक एल्कली, दे आर नॉट टेलिंग यू वीक एल्कली, दे आर सेइंग NH4OH आयंस, NH4OH compound is been there, then what the solution will hold, तो आप क्या कहोगे, it will contains molecules and ions, और ये भी कह सकते हो it will contains NH4OH molecules, और कौन कौन से आयंस आपने देखे हैं, you get NH4 प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस। अब यहाँ परसेंटेज नहीं देना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बस आपको आंसर में अपना ये लिख देना है कि इट विल कंटेन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, और ये आप अगर इस टर्म में भी लिखना चाहो आप दोनों वे में बताइए, NH4OH मॉलिक्यूल्स, NH4 प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, दीज थिंग्स योर सोल्यूशन विल कंटेन, ठीक है। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा एल्कलीज का। सेम कॉन्सेप्ट वी कैन स्टडी इन द एसिड्स ऑल्सो, बिकॉज एसिड्स के केस में भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड होता है, राइट। अब एसिड है आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, दे ऑल विल कम ओवर हियर, राइट है। तो आप सब लिख लीजिएगा, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीनों को इसमें रख लीजिएगा। फिर वो स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, जब आपको मालूम है कि एसिड है, एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा और रिस्पेक्टिव अदर आयन देगा, तो इसने आपको दिया हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl आयंस, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिखना मांगे, चाहे आप इसको वाटर के टर्म में लिखना मांगे, बात एक ही है, ठीक है। वहाँ आपने इंग्लिश में लिख दिया है एक्वस वर्ड, यहाँ पे आपने वाटर लगा दिया तो यहाँ एक्वस मत लगा दीजिएगा, तो ये आपका यू विल गेट दिस वर्ड, आइदर यू राइट डाउन दिस और दिस, बोथ आर करेक्ट। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज एसिड में यू आर गेटिंग एन हाइड्रोनियम आयन, ये तो पता है हाइड्रोनियम आयन। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हुआ, बिकॉज when this particular acid is being dissociated, it is completely dissociated in aqueous solution। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि aqueous वर्ड लिखना ज़रूरी है आपको, कि जो एसिड है जब आप उसको वो वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो क्या कर देगा, आपको
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयंस आपको देगा। एच आयंस कह दो या वो बाद में हाइड्रोनियम आयंस कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये एक आपको पॉइंट पे ध्यान दे के चलना है कि ये आपको हाइड्रोनियम आयंस देगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको देगा। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है आपकी, ये कैसी होनी चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगी आपके पास, हाई कॉन्सेंट्रेशन आयंस यू विल गेट, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोनियम दिस थिंग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से एसिड्स यू कैन पुट। अब एक बात, इसका सोल्यूशन, जैसे आपने सोल्यूशन बनाया है, इसमें क्या था, HCl है और वाटर का है। इसके सोल्यूशन में क्या होगा, सारे आयन्स होंगे, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, तो द सोल्यूशन विल कंटेन्स ऑल द आयन्स, राइट, दैट इज़। और अदर टर्म्स में बात करें तो ये भाई HCl है, तो इसके पास H+ आयन्स होंगे, और क्या होगा आपका Cl- आयन्स होंगे, प्लस आपके पास, या आप इसको बोल लीजिए या फिर आप कह दीजिए आपके पास हाइड्रोनियम आयन्स होंगे, ठीक है, या Cl आयंस। भाई Cl को यू कैन नॉट इग्नोर ना, सोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन बेसिकली अगर कॉमन टर्म लेना जाए तो इट विल कंटेन्स आयंस। सो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ वी विल फोकस ऑन द वीक एसिड ऑल्सो। नाउ दिस इज द केस ऑफ अ वीक एसिड। हमने एक एसिटिक एसिड लिया रखा है, आप विनेगर यूज़ करते हो, दैट इज़ एसिटिक एसिड। यू कैन पुट सिट्रिक एसिड ऑल्सो, फॉर्मिक ऑल्सो, एंड कार्बोनिक एसिड, ऑल कैन कम ओवर हियर। सो व्हाट हैपन, आपने एसिटिक एसिड लिया है, अब आपको मालूम है कि ये भी जब ब्रेक होगा तो ये आपको रिस्पेक्टिव आयंस देगा, राइट। इट विल गिव यू CH3 आयंस, CH3CO- आयंस एंड H+ आयंस, ठीक है, ये एसीटेट आयन है ये। तो अब ये वीक एसिड है, जब आप इसका सोल्यूशन बनाओगे, मैंने वाटर लिखा हुआ है एक्वस के केस में, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसे यू कैन राइट डाउन इन दिस मैनर ऑल्सो, डजेंट मैटर, राइट। तो ये आपको चाहिए तो आप अपना एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयंस यू विल गेट इट, राइट। तो दिस वे यू कैन राइट ऑन। अब नाउ दिस पार्ट, ये जो आपका कंटेनर है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है जिसमें वाटर आपने मिलाया रखा, ठीक। अब आप बात कर रहे हो वीक एसिड का। वीक एसिड का व्हाट हैपन व्हेन दिस कंपाउंड विल डिसॉल्व इन द वाटर, इट इज़ पार्शियली डिसोसिएटेड, राइट। पार्शियली डिसोसिएटेड होगा, जिसकी वजह से आपको लेस अमाउंट ऑफ H आयंस मिलेंगे, राइट है ना, बहुत कम अमाउंट के आपको H आयंस मिलेंगे। फिर वही थ्योरी है, अगर आपने 100 लिया रखा, हो सकता है 60% ही यहाँ डिसोसिएट करे, तो 60% आपको ये आयंस मिले, ये आयंस मिले, हाइड्रोनियम आयंस कह लो या हाइड्रोजन आयंस कह दो, बाकी तो मॉलिक्यूल है। तो ये जो कंटेनर है, इसमें जो सोल्यूशन है, व्हाट इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस एंड आयंस, राइट। इसका जो सोल्यूशन होगा, ये हमेशा याद रखना, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, आंसर आपका यही होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आपको मिलेगी, मॉलिक्यूल्स भी मिलेगी और आयंस भी। अगर दूसरे टर्म में बात करो तो आप ये कह सकते, जो एग्जाम्पल है उसको आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए, तो आपके पास एसीटेट आयंस, you will get H+ आयंस, you राइट, एंड मॉलिक्यूल्स, ये चीज़ आपके पास में, मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड आप पढ़ रहे हो, तो राइट। सो दिस you can see. Now next heading is basicity of acid. This is not there in the book, but you should know because one or the other time it will come. So it's important that you should know what is basicity of acid or what is acidity of base. ये important है, थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए आपके पास। बेसिसिटी ऑफ एसिड आप बेसिकली काउंट करते हो, क्योंकि ये एसिड का नाम लिया गया है, ठीक है। तो आप एसिड से काउंट करते हो कि उसमें कितने H आयंस हैं पर मॉलिक्यूल, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पर मॉलिक्यूल आपके पास कितने H आयंस आपको दे रहा है एसिड, उससे आप बेसिसिटी ऑफ एसिड डिसाइड करते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक मोनो बेसिक एसिड, एक डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, आप कैसे किसी एसिड की बेसिसिटी निकाल सकते। अब मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, इन तीनों पे ही फोकस करिएगा आप। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट। हमने एक एग्जाम्पल लिया, उससे आप अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl, राइट, यू कैन यूज़ HNO3 ओवर हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने एसिटिक एसिड यूज़ कर लिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, सबकी बेसिसिटी जो है 1 होती है, तो आप इसको एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चूज़ करा HCl। HCl में अगर आप देखिए पर मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है ना, इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने H+ आयंस आपको दिख रहे हैं, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो द पॉइंट इज़ दैट कि वंस यू विल सी द काउंट द एच आयंस, तो यहाँ पे आपको एच है आपका 1 दिख रहा है, 1 आपके पास एच आयन, मतलब पर मॉलिक्यूल्स हाउ मैनी यू आर गेटिंग द एच आयंस, दैट इज़ 1, राइट। सो ये जो भी आप अपना एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे उसमें आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने एक मॉलिक्यूल में कितने एच आयंस आपको में, इस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में आपको एक एच आयंस दिख रहा है, इसीलिए किस कैटेगरी में आएगा, मोनो बेसिक एसिड, राइट। एक आपको एच आयंस मिलेंगे इसमें, या कह सकते हो एक आपको हाइड्रोनियम, भाई एक आप ये मालूम है ना आपको, ये तो आप करना आ ही गया आपको, एक्वस कंडीशन में आप करेंगे तो ये आपको एक H प्लस आयंस प्लस एक Cl आयंस, ये बाद में एक हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, इसीलिए किस में आ गया ये, मोनो बेसिक में। अगर हम डाई बेसिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर आप है ना सल्फ्यूरस एसिड है, सब एक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। कार्बोनिक एसिड है, दे ऑल विल कम हियर, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरस एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये तीनों इस कैटेगरी में आएंगे। अब इसमें ध्यान दो, पर मॉलिक्यूल हाउ मैनी एच आयंस यू आर गेटिंग, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल अगर आप उठा के देखिए आपको यहाँ पे 2 H प्लस आयंस मिलेंगे, राइट, आई एम राइट और नॉट, जस्ट सी आपके पास H2SO4 है, आप इसको एक्वस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस देगा, ये H प्लस देगा, प्लस इट विल गिव यू SO4 माइनस, टू सिंबल और वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग कर लीजिए, हाई कितने H हैं, या 2 हैं, या 2 पुट इट 2 ओवर हियर, सो दिस वे मतलब पर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यू आर गेटिंग 2 हाइड्रोजन आयंस, ये हाइड्रोजन आयन लेटर ऑन हाइड्रोनियम आयंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पर मॉलिक्यूल्स, तो मैं तो सिखा रही हूँ लॉन्ग टर्म में, लेकिन आप इसको देख के भी जज कर लीजिएगा, एक फॉर्मूले में अगर 2 H दिख रहे हैं, हाँ ये डाई बेसिक एसिड में है, अगर एक H दिख रहा है तो ये मोनो बेसिक में आएगा, ट्राई में क्या हो जाएगा 3, नाउ ट्राइबेसिक में 3 आप पर मॉलिक्यूल डिसाइड कर सकते हैं, इसको देख लीजिए करके, अगर आप इसको एक्वस कंडीशन में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको पहले आप जो है वो लिख लीजिए कि हाइड्रोजन आयंस प्लस फॉस्फेट आयंस, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 3 कर लीजिए, तो आपको पर मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में आपको क्या मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन आयंस, ये फर्दर जाके हाइड्रोनियम आयन बना